دیکھیں استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا. تو جب بھی کوئی شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے تو اس کو استغفار کہا جائے گا. اور توبہ ایک شرعی حکم ہے، جب تک اس کے کچھ ارکان ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے تو اس عمل کو توبہ نہیں کہا جائے گا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے جس 3 کام اگر آپ کر لیں تو وہ تینوں کاموں کا مجموعہ توبہ کہلاتا ہے. سب سے پہلے جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں آپ. نمبر 2 کہ آپ کو جو ماضی میں آپ گناہ کر چکے ہیں اس پر آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا. اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ آئندہ عزم کریں کہ یہ گناہ آپ نہیں کریں گے، یہ اللہ سے ایگریمنٹ کریں، معاہدہ کریں دل سے کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا. تو جب یہ 3 ارکان پائے جائیں گے تو اس عمل کو توبہ کہا جائے گا جو ایک شرعی حکم ہے، اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس گناہ کو معاف کروں گا چاہے ہزاروں مرتبہ کیا ہو وہ گناہ. لیکن جو بھی شخص بھی توبہ کرے گا، ماضی پر ندامت فی الحال اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، تو یہ عمل توبہ کہلاتا ہے. جب توبہ کرے گا تو استغفار کا سادہ مطلب ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا. تو ظاہر ہے جب استغفار گویا توبہ کا جو ہے ایک حصہ ہے کہ 3 شرطیں تھیں نا کہ آئندہ نہ کرے اور ماضی پر اس کو ندامت ہو اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے. تو ان 3 ارکان کے ساتھ جب وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اس معافی مانگنے کے عمل کو استغفار کہا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار حقیقی معنی میں جب مؤثر ہے جب اس کے ساتھ توبہ بھی ہو. تو استغفار زبان کا ایک عمل ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرنا، جبکہ توبہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے بلکہ آپ کی باڈی کا ایک عمل ہے اور آپ کے سوچ کا ایک عمل ہے. سوچ کیا ہے کہ ماضی میں آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ نہ کرتا، یہ آپ دماغ سے سوچ رہے ہیں، اس وقت اس کام کو چھوڑ دے، یہ آپ کے جسم کا ایک عمل ہے. اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے ایگریمنٹ کریں، تو یہ ایگریمنٹ زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے. تو یہ، اور جبکہ استغفار زبان کا ایک عمل ہے، معافی مانگنا، کسی سے ایکسکیوز کر لینا. جب ہم نارملی بھی لوگوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے استغفار اگر توبہ کے طریق پر ہوگا تو اس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں معاف کروں گا، اور اگر توبہ کے طریق پر نہیں ہے تو پھر وہ ایک استغفار ہے. تو اللہ اگر کسی کو معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، معاف نہ کرے تو استغفار کا بہرحال پھر بھی فائدہ ہوتا ہے. کم از کم آپ ایک معذرت تو کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، ایک دعا تو مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے ان جرموں کو اور میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. بار بار گناہ، بار بار توبہ. جہانگیر خان اپردیر KPK. مولانا صاحب میں سعودی عرب میں ہوں. ہائے انہوں نے گناہ کا تذکرہ کیا، میں اس گناہ کا تذکرہ نہیں کروں گا، بس اشارتاً بات کروں گا. میں نے 5 یا 6 مرتبہ گناہ کیا اور پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں. کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں کیسے اس برائی سے بچوں؟ دیکھو میرے بھائی، جو سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے. چاہے 100 بار گناہ کیا ہو، 100 بار توبہ کی ہو. تو گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب دوبارہ نہیں کروں گا، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے. جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں. دل میں نیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں کروں گا. پھر جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یار کیا فائدہ بار بار توبہ کرنے سے، گناہ تو مجھ سے ہو جاتا ہے. یہ شیطان ہے. شرم آنی چاہیے توبہ توڑتے ہوئے، وہاں شرم نہیں آ رہی، توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو یہ شیطان نا غلط رخ پہ لے کے جاتا ہے انسان کو. ایک ہی چیز جو گناہ سے بچا سکتی تھی وہ توبہ تھی، شیطان وہ توبہ چھڑوا دیتا ہے کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ آپ توبہ تمہیں قائم تو رہتے نہیں ہیں. تو ہونا یوں چاہیے کہ جب گناہ کی طرف جائیں تو پھر آپ بولیں کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ تو توبہ پہ قائم تو رہتا نہیں ہے اور گناہ کر لیتا ہے. تو یہ سوچ کے گناہ سے بچائے اپنے آپ کو. اب گناہ اگر ہو گیا تو بھئی توبہ تو کرنی ہے، کیونکہ جہنم کی آگ تو برداشت نہیں ہو سکتی نا. یا آپ نے کمپرومائز کر لیا کہ چونکہ میں بار بار گناہ کر رہا ہوں اب میں نے جانا جہنم میں، تو جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی. 100 بار گناہ ہوا ہے تو 100 بار توبہ کریں. اللہ سے بولیں کہ اللہ میں نہیں، اس پہ میں دوبارہ توبہ کرتا ہوں. تو حتی الامکان اپنے آپ کو برائی سے روکیں. دوسری بات یہ کہ یہ برائی ہوتی کیوں ہے، تو اس کے اسباب پہ غور کریں. ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جو گناہ کی یاد دلاتے ہوں. اور میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں جلد نکاح کریں. ایک بیوی سے اگر جو ہے وہ پھر بھی گناہ چھوٹنے کا خطرہ نہیں ہے تو دوبارہ دوسری شادی کر لیں. اللہ نے حلال کی آپ کو اجازت دی ہے، کیوں گند میں منہ مارتے ہیں، کیوں برائی کی طرف جاتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو جس حد تک ممکن ہو گناہ سے روکیں. علماء کے بیانات میں بیٹھا کریں. وہاں سعودی عرب میں بڑے علماء، جو بزرگ علماء ہیں، جو نیک پرہیزگار ہیں، عرب ہوں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں. یا کوئی انڈیا پاکستان کے علماء ہوں جو نیک بزرگ ہوں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، تبلیغ میں وقت لگائیں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کے دل میں
बुराई आहिस्ता आहिस्ता ये बुराई खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ना करे फिर भी हो जाए तो रोना अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है। और गुनाह का जब ख्याल आए तो ये सोचा करें ये जो तू बार बार तौबा तोड़ रहा है ना, इससे दिल में स्याही पैदा हो जाएगी, तौबा की तौफीक ही खत्म हो जाती है बार बार गुनाह करने से। और अपने आप को सजा भी दें, जब कोई गुनाह हो तो रोजे रखे या सदका खैरात करके अपने आप को सजा भी दें। तो मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ जो भी गुनाह किसी की भी जिंदगी में हो, अल्लाह सबको सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। और उलमा ने एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी है कि तौबा जो है ना ये एल्फी है, और गुनाह क्या है, ये अल्लाह और बंदे के ताल्लुक को तोड़ देता है। तौबा की एल्फी से उस ताल्लुक को जोड़ देना चाहिए। अब हम एल्फी से वो चीजें जोड़ते हैं जो कीमती होती हैं, जो सस्ती चीजें होती हैं वो नहीं जोड़ी जाती। 5-10 रुपए का कप अगर टूट जाए तो आदमी कचरे में फेंक देता है, लेकिन चांदी या सोने का कप अगर टूट जाएगा तो आप एल्फी से जोड़ेंगे उसको, आप फेंकेंगे नहीं कचरे में। तो इंसान और अल्लाह का जो ताल्लुक है ना, ये घटिया चीज नहीं है, ये बड़ी कीमती चीज है। ये अगर 100 बार भी टूटेगी तो इसको 100 बार जोड़ा जाएगा। जैसे सोने का कप 100 दफा भी गिर के टूट जाए ना तो 100 दफा जोड़ा जाएगा उसको। लेकिन अगर 5-10 रुपए का कप है, वो एक दफा भी टूटता है, इंसान उसको कचरे में फेंक देता है। तो आप अगर समझते हो आपका और अल्लाह का ताल्लुक ये बहुत सस्ती चीज है, घटिया चीज है, तो अगर ये ताल्लुक एक दफा टूट जाए तो दोबारा ना जोड़ें, इसको टूटा रहने दें। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि भाई ये ताल्लुक बहुत कीमती चीज है और यकीनन इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है इंसान और अल्लाह का ताल्लुक रहे, इससे कीमती चीज कोई नहीं है, फिर ये ताल्लुक 100 दफा भी टूटेगा तो 100 दफा इस ताल्लुक को जोड़ा जाएगा। अल्लाह जो है आपको तौबा पे कायम रहने की तौफीक दे। और ये भी सोचना चाहिए बुढ़ापे में तौबा की तौफीक नहीं मिलती, जब जवानी में गुनाह ना छोड़ा हो। खूब समझ लें, बुढ़ापे में ताकत खत्म हो जाती है बुराई की, लेकिन जज्बा बाकी रहता है और वो बड़ी फिर घटिया और बदतरीन जिंदगी गुजरती है। जो नौजवान जवानी में फांसी का काम नहीं छोड़ता ना, बुढ़ापे में उसका बेचारे का बड़ा बेड़ा गर्क होता है। आखिरत के अजाब से पहले अल्लाह दुनिया में बुढ़ापे में अजाब में डाल देते हैं उसको। तो अभी तौबा कर ले, अभी कायम रह ले तौबा पर, इंशाअल्लाह इसकी बड़ी बरकतें अल्लाह आपको अता फरमाएगा। आज असर में एक बंदा आया, किसी का राज फाश नहीं हो रहा, बेगम की कोई बात थी तो मैंने उसको समझाया, तो कह रहा मैं क्या करूं, मैं छोड़ूं, मैं नहीं छोड़ूं, मैं छोड़ूं, मैं छोड़ूं। बहुत बड़ा जुर्म था उसकी बीवी का, नाकाबिले माफी था। तो कह रहा है मुझे, कह रही है माफ कर दो। मैंने उससे कहा देखो एक फैसला करो, या तो माफ करके भूल जाओ हमेशा के लिए, या छोड़ दो और हमेशा के लिए इस किस्से को खत्म करो। कह रहे मुझसे फैसला ही नहीं हो रहा, पता नहीं कितने महीने से लटका हुआ, फैसला ही नहीं हो रहा। मैंने कहा ये जो कंडीशन है ना, ये आपकी जिंदगी तबाह कर देगी। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या माफ करो और भूल जाओ, फिर दोबारा नहीं दोहराओ, या किस्सा क्या करो, फारिग करके खत्म करो, एक तरफ हो जाओ। तो कह रहे अगर मैं छोड़ दूंगा यूं, तो मैंने कहा कोई गुनाह नहीं होगा, जो कंडीशन आपने बताई उसमें छोड़ने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एक फैसला करो। तो ये कमजोर दिली है ना, फैसला ही नहीं हो रहा, डर रहा है, उधर वो भी रखते हुए भी डर रहा है, छोड़ते हुए भी क्या कर रहा है। कंफ्यूज आदमी दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं होता। देखो क्या यार बात से बात निकलती है, मैं क्या करूं, मेरा कसूर नहीं है ना। ग़ज़वा उहुद में ये जो मैंने जुमला कहा है ना, कंफ्यूज्ड आदमी दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं होता, इस दावे को एक्सप्लेन करने के लिए मिसाल दे रहा हूं। क्या करूं, कंफ्यूज्ड आदमी, गलत फैसला हो जाए ना इतना बुरा नहीं है, कंफ्यूजन में रहे सारी जिंदगी ये ज्यादा बुरा है। गलत फैसले की तलाफी हो सकती है, कंफ्यूज ने तो कोई फैसला ही नहीं किया है, तलाफी किसकी चीज की करेगा वो, समझ में नहीं आ रही बात। देखो ग़ज़वा उहुद में हमारे सामने वाक़या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि मदीना के अंदर रह के लड़ना चाहिए या मदीना के बाहर जाके लड़ना चाहिए। मैं ये तराने इसलिए यूं स्टाइल में शुरू कर देता हूँ कि एकदम मैं जज्बाती होना शुरू हो जाता हूँ ना, तो रिलैक्स होने के लिए। क्या नॉर्मल वे में बात करो, क्या ये चीज भी शुरू कर देते होगी, क्योंकि कोई अगर यूट्यूब पे चीख रहा हो ना स्कॉलर, मुझे बहुत बुरा लगता है। और बाज़ में मेरी वीडियो ना दौड़ दौड़ करके, तो मुझे लगता है भाई आराम से बोले यार, तो क्या कर रहा है, आराम से समझा। तो फिर मैं अपनी टून चेंज कर देता हूँ, तरन्नुम से हो जाए ना तो वो टून क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आप लोग भी मुझे ना रिलैक्स आराम से यूं कर दिया करो, चीखने का दौर खत्म हो गया। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मशवरा लिया कि हम मदीना के अंदर रह के लड़ें या मदीना से बाहर। मशवरे के बाद फैसला हुआ कि मदीना के बाहर जाके लड़ेंगे। हालांकि ये स्ट्रेटजी आम तौर पे इख्तियार नहीं की जाती। जब आप कमज़ोर होते हैं, दुश्मन पावरफुल होता है, तो आप अपने आप को एक्सपोज कभी भी नहीं करते दुश्मन के सामने। बाहर आके लड़ने का मतलब तो ये कि पूरी फौज सामने आ गई, अब घेर के कत्ल भी किया जा सकता है उसको। तो ये मशवरा जिन्होंने दिया वो नौजवान साहबा थे, और नौजवानों में जज्बात का उनसर गालिब होता है। जो मिचोर साहबा थे उनकी राय, खुद नबी की राय भी यही थी कि मदीना के अंदर रह के लड़ना चाहिए हमें, उसमें डिफेंस हमारे लिए आसान होगा। लेकिन जो एक फैसला हो गया भाई, उस फैसले का नतीजे में क्या हुआ, शिकस्त हो गई, 70 साहबा शहीद हो गए। समझ में आ रही है बात। अब साहबा शर्मिंदा हुए
کہ यार हमने मशवरा दिया था बाहर निकल के लड़ना चाहिए और उस मशवरे में क्या हुआ, नुकसान हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। तो क्या मतलब, फिर कुरान आयतें नाजिल करता कि जिन जिन हम लोग होते, हम ऐसे मौके पे क्या करते हैं, जिन जिन ने मशवरा दिया था ना जरा आए लाइन पे आ जाए सर। शादी ब्याह में तो यही होता है ना, आपने किसी के मशवरे पे कहीं शादी कर ली, उसके बाद बीवी सही नहीं निकली, इसने मरवाया मेरे को, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, उसने बंदूक थोड़ी रखी थी, एक राय दी थी ना, फैसला तो तुमने खुद किया है। अब हम होते इस मौके पे, जंग के मौके पे, हमारा कोई कमांडर होता, हम तो बुला यार इधर आ जाओ, लाइन पे आ जाओ, तुमने बोला था ना, तुमने बोला था, ये सारे इस तरफ आ जाए, और फिर एक स्टैंप लगा दी जाती कि आइंदा इनसे कभी भी मशवरा नहीं लिया जाएगा, आइंदा इनको हमेशा दूर बिठाया जाएगा, और एक हमेशा के लिए स्याही लग जाती। ये वो लोग हैं जिनकी भाई 70 सहाबा शहीद हुए हैं, 70 बड़े बड़े सहाबा, उन घरों में कोहराम मचा होगा, मैयतें उठी हैं, क्या हाल हुआ होगा। लेकिन कुरान के अल्फाज देखो, अल्लाह ने फरमाया कोई बात नहीं, फइदा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह वशाविरहुम फिल अम्र, आइंदा भी इन्हीं से मशवरा लिया जाएगा, आइंदा भी मशवरे लिए जाएंगे, किससे, इन्हीं से लिए जाएंगे। मशवरे में कभी ऐसा होता है कि दुरुस्त फैसला हो जाता है, कभी गलत फैसला। भाई क़यामत तक के लिए इस्लाम आया है, तभी मैं बार बार बात से फिर बात निकलती है यार। मैं जो कहता हूँ ना, जो कहते हैं 4 शादियां करके हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा हूँ, ये कोई नमूना नहीं है। इस्लाम क़यामत तक के लिए आया तो वो वाला पैकेज देगा तो क़यामत तक के लिए चल सके। तो ये कोई 4 बीवियां करके हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है, ये पैकेज चलता नहीं है, लाखों में एक आदमी में चलता है। जो पैकेज मार्केट में चलेगा वो फड्डों वाला ही चलेगा। तो मिसाली शादी वही है जिसमें फड्डे हो रहे हों, और उन फड्डों में सरवाइव करो। आप समझ में नहीं आ रही बात, वही बात है। फिर नाबालिगों के सामने मैंने बालिगों वाली बातें शुरू कर दी। हमारे नबी की 9 अज़वाज थी, कुछ न कुछ ऊंच नीच वहां भी होती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 ज़ौजा थी, वहां भी ऊंच नीच होती थी। याकूब अलैहिस्सलाम की 2 ज़ौजात में बेटों ने अपने दूसरे सौतेले भाई को कुएं में डाल दिया, वहां भी ऊंच नीच चली है। तो ऐसी बात जो सोसाइटी में चल ही ना सकती हो, जो लाखों में एक हो, वो मिसाली नहीं होती। मिसाली वो वाक़यात होते हैं जो चल सकें। तो इसलिए मैं कभी भी ये किस्से नहीं सुनाता कि जी 4 शादियां कर ली और कुछ भी नहीं हुआ, भाई ये भी सारे वाले नहीं भाई, ये नहीं है। इससे कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी, इसलिए कि जो करेगा जब वो भुगतेगा तो बोलेगा यार मुफ्ती साहब के साथ तो कामयाब हुई शादी, मेरी शादी तो क्या हो गई, नाकाम। नहीं भाई, ये कामयाबी इसी नाकामी के साथ ही कामयाब है। तो इसलिए हमेशा वो लोग काबिल तकलीद होते हैं जो नॉर्मल वे में चल रहे हो। तो अगर इस्लाम में फुतूहात ही होती, शिकस्ती ना होती, तो सहाबा और नबी की सीरत हमारे लिए नमूना बनती। क्योंकि दुनिया में कोई कौम, कोई फौज ऐसी नहीं है, फुतूहात ही होती रहे उनमें। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो सारे वाक़यात कर दिए जो क़यामत तक के लिए हमारे लिए नमूना बने। भाई फुतूहात भी हुई हैं, शिकस्त भी हुई है। मशवरे में मशवरा लिया गया है, उस मशवरे के नतीजे में शिकस्त हो गई फतह होने के बजाय, तो क्या मशवरा छोड़ दें? नहीं, उसूल हमेशा वही रहेगा। फिर नतीजा किस पे छोड़ोगे? बोलो, अल्लाह पे छोड़ोगे। इसी तरह उलमा ने लिखा है, हजरत मुआविया हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की लड़ाई हो गई, ये भी तकवीनी अमर था। अल्लाह ने बता दिया कि लड़ाई के वक्त में क्या करना है तुमने। अगर ये लड़ाई ना होती, हमें पता चलता कि मुसलमानों की अगर आपस में लड़ाई हो तो उसके शरई हकाम क्या हैं। हमें इस लड़ाई से क्या कुछ सीखने को मिला? नंबर 1, लड़ाई हुई है, एक दूसरे के खिलाफ जबान दराजी नहीं हुई है, एक दूसरे के कैदियों को गुलाम नहीं बनाया गया, एक दूसरे के माल को माले गनीमत के तौर पे तकसीम नहीं किया गया। तभी हिदाया में अहकाम लिखे हुए किताबुल बुगात, बागियों के हकाम, कि बागी के पास अगर ताकत हो और लड़ने के लिए आए तो और हुकूमत उसको शिकस्त दे दे तो उनके मर्दों को गुलाम नहीं बनाया जाएगा। दलील क्या है? हजरत अली ने हजरत मुआविया के लोगों को गुलाम नहीं, भाई ये दलील है ना, हमारे लिए तो सहाबा भी हुज्जत हैं। नंबर 2, उनके जनाजे पढ़े जाएंगे, क्योंकि हजरत अली ने हजरत मुआविया के लोगों के जनाजे, बोलो ना, पढ़े हैं। उनकी औरतों की इस्मत की हिफाजत की जाएगी। ये सारी चीजें हैं, बशर्ते के बागियों के पास एक क्या हो, पावर हो, जैसे मुआविया के पास पावर थी। अगर उसके पास पावर ही नहीं है तो इसका मतलब सिवाय फसाद के कुछ भी नहीं है। तो ये सारे हकाम कहाँ से लिए गए हैं? सहाबा से लिए गए हैं। और फिर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलह करके इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये भी हमें हुक्म कहाँ से मिलता है कि भाई बाज दफा सुलह के लिए अपने हक से दस्तबरदार होना पड़ता है। ये भी किसकी सुन्नत है? अकाबिर की सुन्नत है। तो इस्लाम जो है ना, चूंकि क़यामत तक के लिए आया है, तो उसने हकाम वही देने जो क़यामत तक के लिए मुमकिन हो। तमाम देखो, एक बड़ी जबरदस्त बात है इस्लाम में, ये जो कहते हैं ना बांदियों के निज़ाम पे बड़ा एतराज़ करते हैं कि क्या इस्लाम में गुलाम और बांदियां थी। बात यह है कि अगर दुनिया में फ्यूचर में कोई जंग छिड़ जाती है
آپ کے پاس اتنے جنگی قیدیوں کو رکھنے کی جگہ ہے، اور جنگی قیدیوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ ہمارے پاس تو غلام اور باندیوں کا ایک پیکج ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے وہ کسی کو غلام باندی بنانا، لیکن ایک پیکج ہمارے پاس ہے کہ ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، لوگ ان کی حفاظت کریں اور ان سے کام لیں۔ یہ کسی قیامت، یعنی ہمیں تو نہیں پتا نا قیامت میں کتنا ٹائم ہے۔ سورج کی عمر کہتے ہیں ابھی 5 ملین سال تو کم از کم ہے، یعنی 50 لاکھ سال کم سے کم سورج چلے گا اگر قیامت نہ آئی تو۔ قیامت آ گئی تو گیا، یعنی قیامت نہ آئی تو اتنا چلے گا، قیامت آ گئی تو گیا، اور قیامت نہیں آئی تو بھی اتنا ہی چلے گا، اس سے زیادہ۔ تو اس لیے میرے اور آپ کے پاس صرف 50 لاکھ سال باقی بچے ہیں، اس کے بعد سورج ختم ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، ہم نے کیا کرنا، اتنا عرصہ کون سا ہم زندہ رہیں گے۔ خیر، تو اسلام کے پاس ایک پیکج ہے کہ بھائی یہ بھی ایک طریقہ ہے، فرض نہیں ہے وہ، لیکن اسلام کے پاس ایک آلٹرنیٹ ہے، قیدیوں کے بجائے یہ والا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، قیامت تک کے لیے ہے نا، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں یورپ میں مرد ختم ہو گئے تھے نا، ان کے پاس کوئی پیکج نہیں تھا اتنی لاکھوں عورتوں کو ٹھکانے لگانے کا، اسلام کے پاس پیکج تھا۔ صحابہ کرام ایک جنگ میں 10,000 کے قریب صحابہ تابعین شہید ہوئے ہیں، اتنے مرد شہید ہو گئے تو ان عورتوں کو کہاں لے کے جائیں؟ کوئی بات نہیں، ایک مرد 2-2 3-3 شادیاں کرے۔ اسلام کے پاس پیکج تھا یا نہیں تھا؟ تو ان لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اسلام قیامت تک کے لیے آیا، اس لیے وہ تمام چیزیں 23 سال میں وقوع پذیر ہوئی ہیں جو ہمیں 23,000 سال تک کے لیے درکار تھی۔ تو اب دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا اور نتیجے میں کیا ہوا؟ نقصان۔ تو اللہ نے یہ منظر بھی ہمیں دکھانا تھا کہ بعض دفعہ تم مشورہ لے کے بھی عمل کرو گے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشورے لینے چھوڑ دو، نہ، کوئی بات نہیں، پھر بھی مشورہ لینا پڑے گا۔ اور اگر تمہیں پتا ہے کہ یہ شخص تمہارا خیرخواہ ہے اور اس کے باوجود اس کے مشورے کی وجہ سے تمہارا نقصان ہوا، تو اس کو تانا بھی نہیں دینا ہے، دوبارہ اس کو مشوروں میں شریک کرنا ہے، اس لیے کہ وہ پیغمبر، وہ جو ہے فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے، اور انسان سے رائے دینے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ اس نے تمہیں مروا دیا ہے، بھائی اس کی نظر میں جو بہتر تھا اس نے تمہارے سامنے رکھ دیا، اب تمہاری قسمت ہے۔ تو قرآن کے الفاظ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی ان لوگوں کے مشورے کی وجہ سے غزوہ احد میں آپ کو نقصان ہوا، کوئی بات نہیں، اس نقصان کی نسبت ان لوگوں کی طرف نہیں کرنی، بلکہ نقصان کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے کہ اللہ نے یہ نقصان کسی حکمت سے کروا دیا۔ وہ حکمت کیا تھی؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، بہت سے لوگوں کو اللہ شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا، اللہ چاہتا تھا یہ دنیا کی آزمائشوں سے نکلیں، انہوں نے بہت کو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کو شہادت دے کے جنت میں داخل کیا جائے۔ دن میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو یہ سوچا جائے گا۔ تو آگے قرآن نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے آئندہ بھی مشورہ لیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ پہلے جب مشورہ لیا تھا تو نقصان ہوا، اب تو کہہ رہے ہیں آئندہ بھی مشورہ لیں۔ اب اگر مشورہ لیا تو کھٹکا لگے گا کہ دوبارہ نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ نے حکم تو دے دیا ہے لیکن نتیجے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، بہت مشکل ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے نا اس دفعہ مشورے کی وجہ سے نقصان ہو گیا، آئندہ بھی مشورہ لے، میں گارنٹی لیتا ہوں نقصان نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے نہیں کہا، یہ اللہ نے نہیں کہا، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اب خطرہ ہو سکتا تھا، اللہ پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں انہیں سے مشورہ لے۔ اللہ نے اس اشکال کا جواب دے دیا۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ لے کے جب ایک رائے قائم کریں تو توکل علی اللہ، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یہ بھی بڑے سیلیکٹڈ الفاظ ہیں قرآن کے۔ قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ دوبارہ مشورہ لیں اور جب کسی رائے پہ مشورے کے بعد مضبوط ہو جائیں تو یقین رکھیں کہ اب نقصان نہیں ہوگا۔ نہ اب بھی اللہ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، کیوں؟ ہو سکتا ہے پھر نقصان ہو جائے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا نقصان نہیں ہوگا، فرمایا رائے قائم ہو تو توکل اللہ پہ، نتیجہ چھوڑ دو، اعتماد کس پہ کرو؟ اللہ پہ۔ اللہ پہ اعتماد کا مطلب ہوتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، نقصان میں بھی خیر ڈال دے گا وہ، ہم اس سے زیادہ کے پابند نہیں ہیں۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم مشورہ کریں، ایک رائے قائم کریں، اس کے مشورے میں کیا ہوتا ہے پلس مائنس تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ لیں، نفع اور نقصان کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے ایک رائے قائم کریں، فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے، نقصان ہو جائے تو رونا پیٹنا نہیں کرنا، اللہ پہ توکل کرنا ہے، اسی میں ہماری خیر تھی۔ اللہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے، اللہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے، ہمیں ٹرین کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک انگریز کا قول ہے نا کہ کوئی تم سے غلط کام ہو گیا، یعنی تم نے کسی کاروبار میں پیسے ڈالے یا کوئی کام تم نے کیا، اس کے بعد تمہیں پتا چلا کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو نقصان نہیں ہوا ہے کیونکہ تمہارے پاس یہ علم آ گیا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور میرے ساتھ تو یہ بہت ہوا ہے، میرے ساتھ یہ بہت ہوا ہے۔ ابھی ایک جگہ میں نے تفریح کے لیے جانا تھا،
वो जगह नहीं बताऊंगा, फिर वो लोग बोलेंगे यार ये हमारी बेइज्जती हो रही है, इसलिए किसी को नहीं पता चलेगा। बड़ी तमन्ना थी मेरी बहुत अरसे से, फलां जगह मैंने जाना है, बहुत मैंने तारीफें सुनी थी उस जगह की, मैं नहीं बताऊंगा वो जगह कहाँ है। बहुत मेरी तमन्ना यार उधर तो मैंने देखना है क्या है। अल्लाह ने मेरा ले जाना मुकद्दर कर दिया, हम गए, कुछ भी नहीं था वहां पे। तो मैं जब बाहर आया ना, उन मेजबान से तो मैंने कुछ नहीं कहा, उसका दिल छोटा हो जाता है। जब दोस्तों से मैं मिला, उन्होंने कहा आपको फायदा हुआ? मैंने कहा फायदा मुझे बहुत हुआ है इस जगह आने से, बहुत फायदा हुआ। कह रहे मजा आया? मैंने कहा मजे को छोड़ो, फायदा बहुत हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा क्या फायदा हुआ? मैंने कहा जिंदगी भर के लिए ना ये वसवसा निकल गया कि यहाँ जाना है, नहीं जाता ना सारी जिंदगी ये ख्याल मुझे तंग करता कि यार यहाँ क्यों नहीं गया, मैंने दुनिया में ये जगह देखी क्यों नहीं है। मैंने कहा यहाँ आने से मुझे सुकून मिल गया कि यहाँ के अलावा दुनिया में हर जगह जाओ। और बाद वालों को मैं बता सकता हूँ जिनको अभी वसवसे आ रहे हैं कि यार यहाँ जाना चाहिए, उनको बता सकता हूँ कि बिल्कुल भी जाने की जगह नहीं, कुछ भी नहीं है वहां पे। समझ में आ रही है बात? तो ये फायदा हो गया कि नहीं हो गया? सुकून मिल गया, वरना बिला वजह सोच सोच के सबको टेंशन दी, यार वहां लेके जाओ, यार उधर जाना चाहिए, यार उधर जाना चाहिए। तो ये गोरे की बात है, और ये इस्लाम तो पहले कर चुका है कि भाई अगर आपने मिसाल के तौर पर, एक और मैंने मिसाल देता हूँ अक्सर लोगों को बयानात में, अपने किस्से सुनाना मकसद नहीं होता, आपको गाइड करना मकसद होता है। हमने खजूरों का बिजनेस शुरू किया, उसमें कुछ पैसे लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह 2 टके का फायदा नहीं हुआ, बल्कि कुछ लोगों ने खजूर खरीद के मुझे ही गिफ्ट दे दी। वो उनको पता नहीं था मेरी कंपनी है ये, यानी वो मेरे घर आ रहे थे मिलने के लिए कि चलो मुफ्ती साहब को कोई गिफ्ट देते हुए जाए, रमजान आ रहा है तो खजूर बड़ा गिफ्ट है, तो मेरी ही शॉप से खरीदा और मुझे लाके गिफ्ट पकड़ा दिया, वो भी इस नीयत से, खाने की नीयत से नहीं। तो मेरा नुकसान हुआ उसमें, लेकिन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब जिस बेचारे ने पैसा लगाया था मेहनत करके, उसने तो मेरे खिदमत की नीयत से लगा, पैसा तो मैंने लगाया था, उसने खिदमत की थी। जिसने मेहनत की वो भी बेचारा शर्मिंदा। मैंने कहा बिल्कुल शर्मिंदा ना हो, मुझे तुम्हारी वजह से बहुत फायदा हुआ है। कहने क्या फायदा हुआ? मैंने कहा मैंने जो इतनी अमाउंट लगी है ये इस काबिल है कि मैं सरवाइव कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी रकम नहीं डूबी। इस रकम डूबने के बाद अगर मुझे ये इल्म हासिल हो गया कि खजूर का काम मेरे बस का नहीं है, तो ये नॉलेज मेरे लिहाज से कम नॉलेज नहीं है, और ये अपनी औलाद में भी ट्रांसफर करूंगा मैं। अब आप कह सकते हो खजूरों में मुझे नुकसान क्यों हो गया? भाई इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर पड़े हुए हैं जो करोड़ों रुपए की खजूरें लेके स्टोर कर लेते हैं, उसमें हमारी कहां से चलेगी? समझ में नहीं आ रही बात? वो करोड़ों रुपए की खरीद के इन्वेस्ट कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, वो उनके रेट हमारे रेट पहुंच ही नहीं सकते वहां तक, और ऊपर से बदनामी अलग। अगर लोगों को पता चल जाता है मुफ्ती साहब की कंपनी है, अब बोलता मैं अपनी कंपनी, अभी भी ये मेरी कंपनी, पता नहीं चलने देता लोगों को कौन सी है, तो वो ये भी ना देखते कि मुफ्ती साहब ये खजूर का डब्बा महंगा दे रहे हैं और वहां से सस्ता मिल रहा है, गालियां अलग मिलती। क्या ख्याल है? हालांकि वो हम महंगा दे के भी हमारा प्रॉफिट कम होता और जो सस्ता दे रहा है उसका प्रॉफिट ज्यादा होता, क्योंकि करोड़ों रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर इतने हजार या इतने लाख डूब के मेरे पास ये नॉलेज आ गई है कि ये हमारे बस के करने का नहीं है, तो ये इल्म, खुदा की कसम इल्म तो इल्म है मेरे भाई, चाहे कोई भी हो, इल्म की बड़ी हैसियत है। इसी तरह मेरे पास एक नॉलेज है जो आपके पास नहीं है, वो उलूम है, उलूम ऐसे उलूम है ना मेरे पास, लेकिन तुम्हारी समझ से बालातर है। उलूम क्या है? मैंने अपने वालिद साहब की विरासत का जितना पैसा मुझे मिला था नेक लोगों को दे के बर्बाद कर दिया, तिजारत के नाम पे। बहुत नेक दाढ़ियों वाले हाजी पाजी, ये मैं फलान जगह छाला जगह फला जगह, मैंने कहा बिजनेस करेगा, सारे क्या कर दिए? खत्म। तो लोग मुझे कहते थे कि आपके पास बिजनेस का तजर्बा बहुत है। मैंने कहा तजर्बा तो ऐसा है कि हटो बच्चों, लेकिन अफसोस इस पर है कि जब पैसा था तजर्बा नहीं था, जब तजर्बा आया तो पैसा खत्म। कह रहे वो तजर्बा क्या है? मैंने कहा तजर्बा ये है कि इस जमाने में सबसे बड़ा बेवकूफ दुनिया का वो है जो किसी को बिजनेस के नाम पे पैसा दे। आप समझ रहे हो मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारा जब डूबेगा ना पैसा फिर बोलोगे। अभी खातून आई है, मुझे कहने लगी 2-3 दिन पहले, मेरे बहनोई मुझसे पैसे मांग रहा है, बहुत नेक है, दाढ़ी है माशाल्लाह, और वो कह रहे मैं कारोबार में लगाऊंगा। मैंने कहा ये बड़ा ही नीच नस्ल का आदमी है ये तुम्हारा बहनोई, किसी के बहनोई को ऐसा कहना नहीं चाहिए। कहने कि आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा उसको ये शर्म नहीं आ रही कि किसी कमजोर औरत का माल खा रहा है। यार वो उस बेचारी के पास क्या है? तुम्हारी साली है वो, तुम्हें पता है उस बेचारी के पास 4 तोले 5 तोले सोना है, वो तो रहने दो उसके पास, शौहर मर जाएगा क्या करेगी वो? उस बेगैरत को इतनी शर्म नहीं है, उसका पैसा दाव पे लगा रहा है, अपनी साली का पैसा, तो गाली नहीं निकलेगी क्या? वो कह रही नहीं वो तो बिजनेस करके। मैंने कहा झूठ बोल रहा है, नहीं देगा बिजनेस करके, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज तक कायनात में किसी बहनोई ने अपनी साली को दिया हो तो मुझे बताओ यार। और अगर कोई बहनोई अपनी साली को कमा के दे रहा है ना, वो बड़ा फ्रॉडी है, क्योंकि वो सब्जी वाले वाला गेम कर रहा है जो सब्जी वाले ने मेरे साथ किया। वो कमा के दे के एतमाद क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, ताकि ये साली जितने भी दाएं बाएं ससुराली है सबके पैसे लाके इसकी झोली में डाल दे। तो खातून क्या आप मेरे बहनोई को ही कह रहे हैं? मैंने कहा मैं नहीं कह रहा, तुम्हारा बहनोई ऐसी हरकतें कर रहा है कि
खुद गालियां निकलवा रहे हैं मेरे मुंह से। ईद के दिन की बात है, एक खातून आ गई, मेरे दामाद ने मुझसे पैसे मांगे हैं। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपका दामाद बहुत बड़ा क्या है, वही है, ये कहाँ गए हैं? वो भी एकदम उछल गई ना, मुफ्ती साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा आपका दामाद बहुत बहुत बड़ा बेगैरत है। अब मैं बताऊंगा नहीं कौन थी वो, फिर वो सब उसका दामाद मेरे न गला के पकड़ ले हुए, तूने मुझे को ऐसे बोला है। मेरे भाई छोड़ दो ये भिखारियों की तरह लोगों से पैसे मांगना, बस करो। जो तुम्हारी जेब में है उसी में खाओ, सर उठा के जियो, बस जो जेब में है उसी से कारोबार करो, नहीं तो टमाटर बेचो। जिसने मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब फरमाते थे अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, बिल्कुल सही कहते थे अल्लाह का मिजाज, अल्लाह देखो तौहीद को पसंद करता है ना। अल्लाह चाहता है आपका सर अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुके, है भाई? आप अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा अपने आप को किसी के सामने जलील करो, रुस्वा करो, अल्लाह चाहता है? तौहीद है ना यही तो। तौहीद की दो किस्में, एक बड़ी तौहीद, एक छोटी तौहीद, यानी शिरके असगर और शिरके अकबर। तो जैसे शिरके अकबर को अल्लाह पसंद नहीं करता, बुत के सामने इबादत को, ऐसे ही एक शिरके असगर भी है कि हमें अल्लाह के सिवा किसी और के सामने नाक रगड़ने की इजाजत नहीं। अब नाक रगड़ने का एक तरीका तो सरदा करके होता है, एक तरीका भीख मांग के होता है। ये ज्यादा जलील हो रहा है भीख मांग के। हमारे हजरत फरमाया करते थे अल्लाह की आदत ये है, क्योंकि हजरत ने भी वाकयात पढ़े हुए थे, मुशाहिदा किया हुआ था, कुछ चीजें हमें देख के पता चल जाती हैं कि ऐसा लगता है अल्लाह की आदत ये है, वाकई नजर आता है कि जिसने एक दफा हाथ यूं कर दिया ना, समझ में आ रही है बात, एक दफा यूं कर दिया गया उस। अब अल्लाह कहता है मांगता ही रहे, तेरे चेहरे पे अब कभी भी रौनक नहीं आएगी, तू हर वक्त यही कहेगा पैसे ही नहीं है यार, थोड़े से यहाँ से पैसे, यार एक कारोबार में नुकसान हो गया, यार मेरा ये हो गया, यार ये हो गया। अब जिंदगी चाहे करोड़ों, हमारे सियासतदानों को देख लो यार, हमारे जो सियासतदान जो करप्ट हैं उनको देख लो आप। मैं थोड़ी कह रहा हूँ सारे करप्ट है, जो करप्ट है उनकी बात कर रहा हूँ। पेट भरा है यार, इतना कुछ बना लिया, इतना कुछ बना लिया, मांग मांग के इधर से घसूटो, उधर से लो, इधर से लो। ये चेहरे की रौनक खत्म होती है, भिखारी बन जाता है इंसान। मैंने ऐसे गरीब लोग भी देखे, जेब में थैला नहीं है, ऐसा सर उठा के जी रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह को देखा है। हमने तो हजरत का वो जमाना देखा जब हजरत के पास दौलत आ गई थी बहुत, लेकिन हजरत बताते थे हमारा वो जमाना भी था। तो हजरत के तो दोस्त अहबाब थे ना, वो बताया करते थे कैसा इस्तिगना था। अक्सर मैंने बयान में वाकया सुनाया, फरमाते हैं अंडा बेचने वाला आया, हमारे पास अंडे खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने कहा रोजाना कितने अंडे लेंगे? हमने कहा हमारे पास वो हमने पहले से इंतजाम किया हुआ है। मतलब ये था कि ये थोड़ी कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तू ज़कात में दे जा तो अच्छी बात है। नहीं भाई, अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है। ये भी एक स्टाइल होता है। तो हालांकि अंडे के पैसे नहीं थे। अब ये नहीं कि रोना धोना, कोई बात नहीं, खाली रोटी खा लो यार, खाली रोटी खा लो। अंडे में अच्छे प्रोटीन है उनके लिए जिनके पास अंडे के पैसे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है, अल्लाह उनके प्रोटीन सारे पराठे से पूरा कर देगा। मैंने मजदूरों को देखा है, बाज मजदूरों को ऐसे रोटी खा रहा है पानी के साथ, कुछ भी खाने को नहीं है। सुबह भी ऐसे ही रोटी खाएगा, दोपहर भी, और ये मजबूत कलाइयां, किसी को हाथ मारे ना जबड़ा फाड़ दे उसका। मैं तो शुरू से इन चीजों को ऑब्जर्व करता हूं ना, तो मैं देखता था यार ये मजदूर तो ना प्रोटीन मिल रहा है इसको, ना विटामिन सी मिल रहा है इसको, रोटी खाता है बहुत ज्यादा, प्याज यूं तोड़ेगा प्याज के साथ खा लेगा। वैसे प्याज हल्की चीज है नहीं, वो सारी कमी अल्लाह प्याज से पूरी कर रहा है उसकी। ऐसे खींच के चपेड़ा मारे ना तो जबड़ा आदमी को घूम जाए पूरा वहीं पे। भाई ये अल्लाह ताला गरीबों के लिए पैकेज अल्लाह ने, ये सारे मालदारों के चोचले प्रोटीन और फिश जो है ना, जिनकी जेब में क्या हो, पैसे हो, नहीं है तो जो है बस उसी पे गुजारा करो। बार बार वाकया सुनाता हूँ, फिर दोबारा आ रहा है ये वाकया। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ने कई इसके गवाह हैं जो जिन्होंने हजरत से ये वाकया सुना है। दारुल इफ्ता में हजरत फरमाते हैं मैं अपनी अहलिया को लेकर डॉक्टर के पास गया, उनकी तबीयत खराब थी। डॉक्टर ने कहा इनको फल खिलाएं, कुछ विटामिन की कमी है, फल फ्रूट जरूरी हैं। हजरत फरमाते हैं मेरे पास फल फ्रूट खिलाने के पैसे नहीं थे। और आलिम कितने बड़े, दारुल उलूम कोरंगी में बुखारी के उस्ताद, जो सबसे बड़ा ओहदा है। नहीं आई समझ में? ये जो लोग कहते हैं ना मदरसे के मौलवी खाऊ होते हैं, भाईजान मदरसों में जो मौलवी पढ़ा रहे हैं ना, उनके इखलास पे शक नहीं करो, उनके इखलास पे शक नहीं करो। बहुत थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं वो। तो हजरत कहते हैं मेरे पास तो फल के पैसे ही नहीं थे। तो अब ये नहीं कि हजरत वहां रोना शुरू कर दें डॉक्टर के सामने। हम और आप होते हैं, हम आप डॉक्टर जैसे ही कहता कि आप अपनी वाइफ को फल खिलाएं। अब हमारा स्टाइल क्या होता है, क्योंकि डॉक्टर से पैसे निकलवाने हैं ना कि फीस न लिए और जो है ना वो मशवरे के साथ एक आम की पेटी भी दे दे, तो हम यूं बैठे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, एक आंख से आंसू, फिर दूसरी आंख से सुन लिया आपने डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, वो भी फिर बेगम साहब भी जी सुन लिया मैंने। डॉक्टर साहब ठीक है। डॉक्टर कहता क्या हो गया, आप कुछ एक्साइटेड हो रहे हैं, जज्बाती हो रहे हैं?
नहीं डॉक्टर साहब, कोशिश करेंगे, चलते हैं। ये होता ना, हमें सड़ा हुआ मुंह लेके उठते हैं वहां से। हजरत का मिजाज था, मैंने 78 साल की उम्र तक हजरत को हंसता बसता देखा है, कभी चेहरे पे गम के आसार। खुदा की कसम, उनकी मजलिस में बैठ के टेंशन दूर हो जाती थी, हर वक्त चेहरा क्या है। और कहते थे अल्लाह की नेमतें, इतनी लोड शेडिंग बहुत हो रही थी उन दिनों में दबा के। हम हजरत के साथ ऑफिस में बैठे तो लाइट चली गई, अंधेरा, हजरत बैठे हुए हैं, सारे काम काज से फारिग हो। थोड़ी देर में लाइट आई है, रोशनी, एसी में लाजमी, जब अल्लाह ने पैसा दिया है तो बहुत इस्तेमाल किया। फिर हजरत एसी के बगैर नहीं रहते थे, एकदम एसी ऑन हुआ, लाइट। कहते हैं अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतें हैं, कितनी बड़ी नेमत, कैसी रोशनी हो गई, कैसा दिमाग क्या हो गया, फ्रेश हो गया। हर वक्त नेमतों की बातें होती थी। हत्ता कि जब आखिर उम्र में बीमार हुए ना, जिसमें मौत वाक़ई हुई है, उसमें भी किसी को हाय हुए नहीं करने देते थे। लोग तो चाहते हैं मैं जब बीमार हूँ लोग तरस खाएं, हाय हाय हमें बहुत गम हो रहा है आपके दुनिया से जाने का, ऐसे करके ना हजरत को गुस्सा फरमाते इंसान के बच्चे बनो। तो एक उस्ताद आए, हजरत की तबीयत खराब थी, उसी में हजरत का इंतकाल हुआ। फिर उन्होंने कहा हजरत काफी गमज़दा हूँ आपको देख के। हजरत ने बहुत डांट लगाई, फरमाया आप लोग हर चीज को उल्टा सोचते हो, 78 साल का हो गया अभी भी नहीं जाऊंगा क्या? अभी भी तो हम निकलो भाई, 78 साल का हो गया, बस काफी है, अब जाना भी तो है, तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है। बहुत गुस्सा होते थे कोई, और अपनी बीमारी हजरत लोगों के सामने शेयर करके उनकी हमदर्दियां नहीं लेते थे। हजरत कहते थे इस्तिगना के साथ रहो, अपना गम किसके साथ शेयर करो, सिर्फ अल्लाह बस। हजरत फरमाया दवाएं भी खा रहे हो ना, छुप के खाया करो, पब्लिक के सामने नहीं खाया करो। तो क्या था, मैं कहां से कहां चला गया। तो अपनी अहलिया को लेकर गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा फल फ्रूट खिलाएं, इनकी तबीयत जब ही सेट होगी। तो मैंने वो पूरा बताया ना, हम होते तो कैसे कर रहे होते, हाय हाय हु। तो डॉक्टर पूछता खैरियत, कहते बस डॉक्टर साहब पैसे ही नहीं। हजरत कहते हैं मैं उठ गया आराम से। हजरत के घर वाले, हजरत अपनी अहलिया की बहुत तारीफ किया करते थे। मैंने किस दुनिया में किसी शख्स को नहीं देखा जो अपनी ज़ौजा की इतनी तारीफें करता हो जितनी मैंने अपने शेख को देखा, जितनी वो अपनी अहलिया की तारीफ करते थे। और हजरत को ये अहलिया मिली कैसे? हजरत फरमाते हैं मेरे वालिदैन ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया था, वो लड़की दीनदार नहीं थी। हजरत कहते हैं मैं शर्म की वजह से मना भी नहीं कर पा रहा था। उम्र 22-23 साल होगी, तो मैं उस खेत, इंडिया में लुधियाना में थे ना, तो खेतों में गया, वहां जाके सर्दे में गिर के गिड़गड़ाया, रोया अल्लाह के सामने कि अल्लाह मुझे वहां मेरी शादी कर दे जो दीनदार हो। तो कहते हैं वहां इत्तेफाक से वो रिश्ता उन्होंने खुद ही तोड़ दिया। तो फिर यहाँ हुई, तो फिर हजरत सुनाते थे कि कितना अल्लाह ने मेरी अहलिया को तवक्कुल दिया, और कितनी उनको अल्लाह ताला ने हया, पर्दा, और ये सारी जो दीनदार औरत की, यानी एक मिसाली रिश्ता था मेरा हजरत का और हमारे हजरत की अहलिया का, ऐसा मिसाली रिश्ता। हजरत कहते थे मैंने आज तक अपनी अहलिया को हाकिमाना अंदाज में कोई ऑर्डर नहीं दिया। हम कहते नहीं ये उठा लो यहाँ से, ये ले जाओ यहाँ से, ना 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 ना, दस्तरखान उठवा लें। हालांकि उठाना किसने है? उनकी अहलिया ने उठाना। लेकिन कहते हैं उठा लें, ये मुझे लगता था जैसे मैं ऑर्डर चला रहा हूँ किसी नौकर पे। ना ऐसी तमीज से जिंदगी गुजारी है, समझ भी नहीं आ रही आजकल ये तमीज मार्केट में क्या चल रही है। हम तो सुन के हैरान होते यार। और आइए बैठिए, ये गिलास यहाँ से उठवा लें, दस्तरखान यहाँ से उठवा लीजिए। हालांकि पंजाबी थे, हेट पंजाबी थे हमारे हजरत। स्टाइल बात करने का समझ में आ रहा है? पंजाब में स्टाइल नजर आता है, कितने जा रहे हैं। तमीज से जब बात करते हैं ना पंजाबी लोग, कुत्ते क्या कर रहा है आजकल तू। मेरे साथ हुआ है ऐसा, मुझे ऐसे कर, मैंने कहा भाई कुत्ता क्यों कर रहा है, मजाक में कहा है, बड़ा कमीना है यार तू। कहते हैं ना पंजाब में आप जाओ, कोई उनको गिफ्ट दो, कहे बड़ा कमीना निकला, तो उनके यहाँ ये गाली नहीं है, ये कल्चर है उनका। तो हजरत फरमाते हैं जब उन्होंने कहा मेरी अहलिया के फल खिलाया करो, तो मेरे पास फल के पैसे नहीं थे। हालांकि हजरत का मेडिकल साइंस का मुताला भी बहुत था, हिकमत का भी, होम्योपैथिक का भी। हजरत फलों की अहमियत ज्यादा जानते थे, लेकिन अल्लाह पे तवक्कुल भी था। डॉक्टर के पास एक इल्म होता है, दूसरा नहीं होता। हजरत फरमाते हैं मैं आराम से उठ के आ गया, मेरे घर वाले भी, और हम दोनों ने सोचा कि अगर हमारे लिए फल की जरूरत होती तो अल्लाह हमें फलों के पैसे देता। तो ये डॉक्टर ने अपने इल्म के लिहाज से दुरुस्त बात की है। ये जनरली तो अल्लाह का एक उसूल है, लेकिन हमारे ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। हम लोग खास हैं। हम लोग क्या हैं? यानी हजरत के अल्फाज को मैं, हजरत की बात को मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। अगर भाई जरूरत होती तो अल्लाह पैसे देता, इसका मतलब जरूरत नहीं है। पैसे नहीं दिए तो इसका मतलब क्या है? जरूरत नहीं। हजरत भी माशाल्लाह 78 साल तक जिंदा रहे हैं, और हजरत की अहलिया भी 90-95 में जाके उनका इंतकाल हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो ये मतलब है वतफतवक्कल अलल्लाह, जब फैसला कर लो तो तवक्कुल किस पे करो? अल्लाह पे। जो होगा हमारे हक में क्या होगा? बेहतर। तो मशवरा लेने के बाद नुकसान हुआ है, फिर भी नबी को हुक्म दिया जा रहा है इन्हीं से मशवरा लेना है, और उस पर जो फैसला हो जाए, तवक्कुल किस पे करना है?
اللہ پہ, جو ہوگا ٹھیک ہوگا. ایک گورے نے ایک عجیب بات لکھی ہے, مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے مفسر گزرے ہیں علماء دیوبند میں. یہ انگلش کے بھی بہت بڑے یعنی ایکسپرٹ تھے, انگریزی زبان کے بہت ماہر تھے, اور جو گوروں کا بھی کی کتابیں بھی انہوں نے بہت پڑھی ہوئی تھی. ان کی تفسیر میں جا بجا انگریزوں کے حوالے بھی ملتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو آیتیں ہیں نا جن میں یہ اس طرح کی آیتیں, اس میں ایک انگریز مورخ کا حوالہ لکھا ہے, انگلش میں ہے وہ, پھر اس کا ترجمہ کیا ہے اپنی کتاب تفسیر ماجدی میں. لکھا ہے, انگریز کہتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے پاس یہ والی آیتیں ہیں نا کہ نقصان ہو بھی جائے تو کس پہ توکل کرنا ہے, اللہ پہ, کہہ رہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو محمد, وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے نا گورے, وہ تو صرف محمد لکھتے ہیں, کہتے ہیں محمد کی کامیابی کا سب سے بڑا راز کیا تھا, یہ فلسفہ تھا. یہ نا امیدی ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا, نا امیدی ہے ہی نہیں. کہہ رہے سب سے بڑی جو کامیابی جو 23 سال میں پوری دنیا میں چھا گئے نا, اور فتوحات پہ فتوحات, وہ کہتے ہیں سب سے بڑی کامیابی کے پیچھے قرآن کی یہ والی آیتیں ہیں کہ ناکامی کو ناکامی نہیں مان رہے بھائی, جو ہے کس کی طرف سے ہے, یعنی اسٹریٹجی ہماری وہی رہے گی جو اللہ نے کامیابی کے اسباب بتائے ہیں, نتیجہ کس پہ چھوڑا جائے گا, اللہ پہ چھوڑا جائے گا. لیکن اسباب کامیابی کے ہوں, ہمارے ہاں اس آیتوں کا غلط مطلب ہوتا ہے, اسباب کامیابی کے ہوتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں نتیجہ کس پہ چھوڑ دو, اللہ پہ چھوڑ دو. تو پہلے کامیابی کے اسباب اختیار کرو, پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑو. تو میں بات کہاں سے لے کے چلا تھا, کہیں اور نکل گئی, کسی کو یاد ہے ناسا کی پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے. ہاں کنفیوز, میں کہہ رہا تھا کہ کنفیوزڈ آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو اس پہ میں یہ دلیل دے رہا تھا کہ قرآن نے کنفیوژن میں نہیں رکھا ہم کو. قرآن نے کہا اگر مشورے کے بعد غلط نتیجہ نکل بھی گیا تو کوئی بات نہیں, تقدیر کا حصہ سمجھو, دوبارہ مشورہ لو, پھر عزم کرو اور اس فیصلے پہ ڈٹ جاؤ. تو اللہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم کنفیوز رہیں, ہے بھائی, تردد میں ساری زندگی گزریا, کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا ہے, یہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے, نہ اللہ کہتے ہیں بھائی یہ قواعد پورے کرو کسی چیز کے اسباب کے, اس کے بعد فیصلہ کرو. نقصان ہو جائے تو دیکھو کس بات پہ نقصان ہوا ہے, دوبارہ وہ اس نقصان کی تلافی کرو. بھائی اب یہ غلطی دوبارہ نہیں, مثال کے طور پر دوبارہ لڑائی ہو جاتی تو پھر یہ غلطی نہیں دہرائی جاتی کہ مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا ہے, نہ تبھی آپ دیکھو جب غزوہ خندق ہوئی ہے تو پھر یہ نہیں ہوا کہ ہم باہر نکل کے سارے سب سے لڑیں گے, نہ بھائی پچھلی دفعہ یہ غلطی ہو چکی, اب مشورے میں یہ طے پایا کہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے اتنے سارے قبیلے مل کے حملہ کر رہے ہیں, کیا کرنا ہے, تو صحابہ نے کہا کبھی ہم نے یہ جنگ دیکھی نہیں ہے, اتنے سارے قبیلوں نے مل کے حملہ کیا ہو, تو جنہوں نے دیکھی ہے ان سے مشورہ لیا جائے. حضرت سلمان فارسی کو بلایا گیا جو فارس کے تھے, ایران کے تھے, ان سے پوچھا, انہوں نے کہا ہم نے تو یہ جنگیں دیکھی ہیں, ہم کیا کرتے ہیں خندقیں کھود دیتے ہیں کہ دشمن یعنی لڑائی کو ٹال دیتے ہیں, دھکیلتے ہیں, لڑتے نہیں ہیں ایسے موقع پہ, کیونکہ اتنی بڑی طاقت سے ان کمزوروں کے لیے آگے بڑھ کے لڑنا ممکن نہیں ہے. تو ہماری کامیابی یہی ہے کہ ان کو مدینہ آنے سے روک دیا جائے. تو خندقیں کھودی گئی ہیں, تو یہ ایک دفعہ جو خطا ہوئی اس کو دوبارہ دہرایا نہیں گیا ہے. تو کہاں سے